Good morning students and again welcome to our economics class. Our topic is consumers equilibrium. In the last class we also studied about consumer equilibrium and we studied in single commodity model. It means when a consumer consumes only a single commodity. And you find that a consumer is in equilibrium when its marginal utility equal to the price of the commodity. कंज्यूमर कहां पर इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा जहां पर उसको मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस दोनों इक्वल होंगे NUX इक्वल टू PX. We also see it with the help of schedule and then diagram. In today's class we study consumer equilibrium in second form. It is a two commodity model. And according to two commodity model, a consumer is in equilibrium where marginal utility divided by the price of the commodity for different commodities are equal and consumer spend his entire money on different goods and services. We study with the help of its meaning, conditions, schedule, etc. First we start from its meaning. As we see in our daily life that the consumer is consuming many commodities. अगर हम देखते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में कंज्यूमर बहुत सारी कोमोडिटी का कंजम्पशन करता है, नॉट ए सिंगल कोमोडिटी. आगे देखते हैं आप में इवन एवरीवन वी परचेज लॉट ऑफ टाइप्स ऑफ कोमोडिटीज. अगर कंज्यूमर जब बहुत सारी कोमोडिटीज परचेज कर रहा है तब उसका सेटिस्फेक्शन लेवल कैसे फाइंड करेंगे? वी कैन फाइंड द सेटिस्फेक्शन लेवल इन द टू कोमोडिटी मॉडल बाय टू कंडीशंस. By first we divide the marginal utility with the price of respective commodities. हमें किसी commodity से जो marginal utility मिलती है हम उसको उसकी price से divide कर देंगे. चाहे वो X commodity है, Y है, Z. By this way we find marginal utility of money. It means it's the utility which a consumer can obtain from consumption of last unit of rupee which is spent on different goods and services. Second, we assume that there is no saving. Consumer spend his entire money income on X and Y commodities. By this way, we find the consumer equilibrium in two commodity model. Consumer equilibrium in two commodity model in cardinal approach. When a consumer want to buy two commodities, his equilibrium will be determined in accordance with the law of equimarginal utility. जैसे हमने पढ़ा था law of diminishing marginal utility, we have one more law of equimarginal utility, which is also given by H.H. Gaussian and it's known as the second law of Gaussian. In this case, he will determine his money income among these goods in such a way he gets equal marginal utility in terms of money from all the goods which he consumes. It means कंज्यूमर को जो गुड्स वो कंज्यूम कर रहा है वो उनको अपनी इनकम को इस वे में डिस्ट्रीब्यूट करता है कि उसको जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है वो डिफरेंट गुड्स से इक्वल मिले. और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी कमोडिटी की जो मार्जिनल यूटिलिटी हमारे को मिलती है हम उस मार्जिनल यूटिलिटी को उस कमोडिटी की प्राइस से डिवाइड कर देते हैं. बाय दिस वे वी फाइंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी. Suppose that for a commodity you got marginal utility equal to 50 and you pay the price 10. So what is marginal utility of money? 50 divided by 10 equal to 5. How you find marginal utility of the commodity divided by the price of the commodity? ऐसा क्यों होता है कि हम डेली हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर हम देखते हैं कि जो डिफरेंट गुड्स हम कंज्यूम कर रहे हैं उन सब की प्राइसेस सेम नहीं होती. कुछ गुड्स की प्राइसेस बहुत ज्यादा होती हैं और कुछ गुड्स की प्राइसेस बहुत कम होती है. सपोज से यू परचेज अ पेन ऑफ 20 रुपीज और यू परचेज अ मोबाइल फॉर 20,000 रुपीज. यू कांट कंपेयर देम. आपने मोबाइल परचेज करा 20,000 रुपए का और आपने पेन परचेज करा 20 रुपए का, आप उसका कंपैरिजन कर ही नहीं सकते. नेचुरल सी बात है आपको मोबाइल से यूटिलिटी ज्यादा मिलेगी और पेन से यूटिलिटी आपको कम मिलेगी इन नॉर्मल कंडीशंस. इन दैट केस वी हैव टू फाइंड marginal utility of money. Or how we can find marginal utility divided by the price of the commodity. उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उस कमोडिटी की मार्जिनल यूटिलिटी को
उसके प्राइस से डिवाइड कर देंगे एंड वी फाइंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। और जितनी भी कमोडिटीज एक कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है हम उसकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को इक्वल करने की कोशिश करेंगे और उसके लिए हम क्या करते हैं, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी को प्राइस से डिवाइड कर देंगे। सेकेंड कंडीशन मान के चलते हैं कि कंज्यूमर अपनी एंटायर मनी इनकम को डिफरेंट गुड्स और सर्विस पे कंज्यूम करता है। देयर इज नो सेविंग इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी के अंदर कुछ भी सेविंग नहीं हो रही, कंज्यूमर अपनी पूरी इनकम को स्पेंड कर रहा है ऑन डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज। यहां पर आप देखिए एक्सपेंडिचर ऑन एक्स प्लस एक्सपेंडिचर ऑन वाई इक्वल टू कंज्यूमर्स इनकम। कंज्यूमर ने अपनी पूरी इनकम को एक्स और वाई कमोडिटी पर स्पेंड कर दिया। So there are two conditions for find the consumer equilibrium in a two commodity model. What are these? First we find the marginal utility of money on different goods and we will make similar them. हम उसको इक्विलाइज करने की कोशिश करेंगे और दूसरा मान के चलते हैं कि कंज्यूमर अपने टोटल मनी इनकम को डिफरेंट गुड्स और सर्विस पर कंज्यूम करता है। Now I explain it with the help of a schedule that how we can find the consumer equilibrium condition. Here we assume that consumer income equal 30 rupees. Consumer पास कितने इनकम है 30 rupees. Price of X commodity equal to 4 rupees. X commodity का प्राइस हमने कितना मान लिया 4 rupees per unit. And price of Y commodity is 2 rupees per unit. कि मैंने एक इमेजिनरी कंडीशन लिया कि मैंने मान लिया X की कंज्यूमर है तो उसकी टोटल इनकम है 30 रुपीज, एक्स की प्राइस है 4 रुपीज पर यूनिट और वाई की प्राइस है 2 रुपीज पर यूनिट। फॉर द गिवन शेड्यूल हाउ वी कैन फाइंड द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। हम इस शेड्यूल को दो पार्ट में डिवाइड कराएं, पहला क्वांटिटी विद MUX और MUY, देन वी डिवाइड इट बाय इट्स मार्जिनल यूटिलिटी। तो हम इसके पहले पार्ट की बात कर रहे हैं। फर्स्ट वी टेक द क्वांटिटी व्हिच ए कंज्यूमर कंज्यूम ऑफ डिफरेंट गुड्स, देयर क्वांटिटी इज 1 to 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 consumer consume 10 units of the commodity and the marginal utility is 80 72 64 56 48 40 32 24 16 8। It is the marginal utility which a consumer can obtain from the consumption of different units of the commodity। अब दो चीज आप देखिए नोट करेंगे इसमें। पहला एक तो मार्जिनल यूटिलिटी रेगुलरली डिक्रीज हो रहा है, इट मींस द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज ऑपरेटिंग हियर। सेकंड वन, अगर आप इसको टेबल को लर्न करना चाहते हैं तो बहुत इजी में आप देख सकते हैं। इट्स ए टेबल ऑफ 8 का टेबल है। 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 इन द रिवर्सिंग फॉर्म। अब इजी को इसको लर्न कर सकते हैं। देन वी हैव मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी फॉर द Y commodity. It's 40 38 36 34 32 30 28 26 24 और 22। It is the marginal utility of money, even numbers हैं 40 से लेके 22। Okay. Now if these are given and we have to find the consumer equilibrium, आपको कंडीशन दिया गया और आपसे कहा जाता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फाइंड करो, तो आप ये देखेंगे कहीं पर भी हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फाइंड नहीं कर पाएंगे। बेसिक रीजन, प्राइसेस ऑफ बोथ द गुड्स एक्स एंड वाई आर नॉट इक्वल। एक्स और वाई जो कमोडिटी हैं उनकी प्राइसेस यहाँ पर इक्वल नहीं है। एक्स की प्राइस हमने माना 4 रुपीज पर यूनिट और वाई की प्राइस हमने माना 2 रुपीज पर यूनिट। अब दोनों की प्राइस इक्वल नहीं होने पर यह कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फाइंड नहीं किया जा सकता। टू फाइंड द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स एंड वाई डिवाइड विद देयर रेस्पेक्टिव प्राइसेस। एक्स की मार्जिनल यूटिलिटी को हम एक्स की प्राइस से डिवाइड करेंगे और वाई की मार्जिनल यूटिलिटी को हम वाई की प्राइस से डिवाइड करेंगे। 80 एक्स का प्राइस कितना है 4 रुपीस, 80 डिवाइड बाय 4 20, 72 डिवाइड बाय 4 18, 64 divided by 4 16 and then 14 12 10 8 6 4 2। How we obtain it? We obtain it by the marginal utility of x divided by the price of x commodity. In the similar way, marginal utility of y divided by the price of y commodity. And the price of y commodity we assume 2
2 rupees per unit. So we divide 40 by 2 20, 38 by 2 19, 36 by 2 18 and so on. So MUX upon PX equal 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2. I repeat, how you find it? Marginal utility divided by the price. Or how you find marginal utility of Y divided by the price of Y? It's 20, 19, 18 till 11. So by this way we find MUX upon PX, MUY upon PY. Means marginal utility of money for the X commodity and marginal utility of money for the Y commodity. Our equilibrium condition is MUX upon PX equal MUY upon PY equal MUM. मतलब X की marginal utility of money और Y की marginal utility of money को इक्वलाइज करने की कोशिश करेंगे. और सेकंड कंडीशन, कंज्यूमर अपनी पूरी इनकम को स्पेंड करेगा. अगर हम डायग्राम पर देखते हैं, अगर कंज्यूमर X को Y के एक यूनिट कंज्यूम करता है 20, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इस सिचुएशन के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पर इसके दोनों ही हमारे लिए बराबर है. क्या हो रहा है यहाँ पर MUX अपॉन PX इक्वल MUY अपॉन PY, बोथ आर इक्वल. दोनों हमारे लिए क्या हो रहा है यहाँ पर बराबर है. ठीक है. बट यहाँ पर हमारी सेकंड कंडीशन पूरी नहीं हो रही है. एक्सपेंडिचर ऑन X प्लस एक्सपेंडिचर ऑन Y इक्वल टू कंज्यूमर इनकम. आप इसको समझना, कंज्यूमर X की 1 यूनिट लेता है और Y की भी 1 यूनिट लेता है. X का प्राइस है 4 और Y का प्राइस है 2. So 4 plus 2 he spent only 6 rupees. But the consumer income is 30 rupees. Consumer income कितना है 30 rupees और उसने कितना स्पेंड करा 6 rupees. So it's not the equilibrium condition. अगर हम सेकंड देखते हैं 18. अब 18 पर क्या हो रहा है, कंज्यूमर X की 2 यूनिट्स और Y की 3 यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है. MUX upon PX equal MUY upon PY is equal here, but not the second condition. अगर कंज्यूमर X की 2 कमोडिटीज लेता है तो टोटल एक्सपेंडिचर कर रहा है 4 मल्टीप्लाई 2 इक्वल 8 रुपीस, और अगर 3 यूनिट्स लेता है तो 3 मल्टीप्लाई 2 इक्वल 6 रुपीस. सो 8 plus 6 इक्वल टू 14 रुपीस. कितना स्पेंड करा उसने 14 रुपीस एंड द कंज्यूमर इनकम इज 30 रुपीस. सो इट्स अगेन नॉट द इक्विलिब्रियम कंडीशन. फिर हम आगे देखते हैं 16. यहां भी हमारे लिए क्या होता है MUX upon PX इक्वल टू MUY upon PY, बट इट्स आल्सो नॉट द इक्विलिब्रियम कंडीशंस. क्यों? अगर X की 3 यूनिट लेता है, ठीक है, तो एक्स्ट्रा प्राइस है 4 रुपीस. 4 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 12 रुपीस. कितना स्पेंड करा उसने 12 रुपीस. और अगर Y की वो 5 यूनिट्स लेता है तो 5 मल्टीप्लाई 2 इक्वल 10 रुपीस. तो टोटल कितना स्पेंड करा उसने 12 plus 10 equal to 20 rupees, and again it's not the equilibrium conditions. फिर हम आगे और देखते हैं. नेक्स्ट इज 14. यहाँ पे क्या हो रहा है आपके लिए, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी ऑफ डिवाइड बाय प्राइस ऑफ X सिमिलर टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y डिवाइड बाय प्राइस ऑफ Y. यहाँ पे दोनों बराबर. X की कितनी क्वांटिटी ले रहा है यहाँ पर कंज्यूमर 4 एंड द प्राइस ऑफ X इज 4 रुपीस. So 4 multiply 4 equal 16 rupees. Y की कितनी क्वांटिटी ले रहा है कंज्यूमर 7 और Y का प्राइस कितना है 2. So 7 multiply 2 equal 14 rupees. X पर कितना एक्सपेंडिचर करा उसने 16 rupees. Y पर कितना एक्सपेंडिचर करा उसने 14 rupees. 16 plus 14 equal to 30 rupees. And the consumer income also the 30 rupees. So that's the equilibrium position where both two conditions are fulfilled. Marginal utility of money of X commodity and Y commodity both are same 14 each. Second, expenditure on X plus expenditure on Y also equal. It's 16 plus 14 equal to 30 rupees. So the consumer is in equilibrium when he take quantity of X equal 4 units and quantity of Y equal 7 units. By this way, we can find the consumer equilibrium in two commodity model. So I explained the consumer equilibrium in two commodity model with the help of its conditions and also schedules. In the next class, we start consumer equilibrium again. Now by the ordinal approach, it means indifferential analysis. Thank you.